اپنا منہ ٹھیک کرو سیرت، ہم تمہاری وجہ سے شیزا کی شادی میں جا رہے ہیں۔ بھائی جان کی آواز پر اس نے ایک دفعہ پھر برا سا منہ بنایا۔ میں اپنا منہ ٹھیک کیسے کروں؟ میرا سامان سے بھرا ہوا سوٹ کیس گھر میں رہ گیا ہے، جس میں شادی میں پہننے والے سارے کپڑے تھے۔ اب میں وہاں جا کر کیوں رہی ہوں؟ وہ روحان سے انداز میں بولی۔ اس کے ساتھ بیٹھی سائرہ بابی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ سیرت، تمہیں کئی دفعہ میں نے کہا تھا اپنا سامان دھیان سے گاڑی میں رکھو، اب یہ تو تمہاری لاپرواہی ہے نا؟ سیرت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہاں کوئی اس کا مسئلہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، گاڑی واپس گھمائیں، مجھے اپنا بیگ لانا ہے، شادی میں کیا پہنوں گی بھائی؟ اپنے آنسو روکتے ہوئے بچوں کی طرح ہفا ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی نے مڑ کر ایک تنبیہی نگاہ سیرت پر ڈالی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم دوسرے شہر آئے ہیں سیرت، اور ہمارا شہر یہاں سے پورے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ تم کہو تو میں بلال سے کہتا ہوں، وہ تمہارا بیگ یہاں پہنچا دے گا۔ بھائی کی بات پر وہ گویا کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اس شخص کو یہاں بلوانے کی، میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں۔ وہ یکدم شدید غصے میں آ گئی۔ چھوٹا سا گول چہرہ غصے سے گلابی پڑ گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ سیرت، کوئی نہیں آ رہا۔ یوں بھی بلال کو تو تمہارا شادی میں جانا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے تو ہم دونوں بھی ساتھ آئے ہیں۔ سائرہ بابی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ شدید غصے میں آ گئی تھی، اور ہمیشہ ایسے موقع پر وہ رو پڑتی تھی، پھر اسے سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ چپ چاپ ان کے کندھوں پر سر رکھ کے اپنے آنسو چھپانے لگی۔ یہ دکھ بیگ وہاں رہ جانے سے زیادہ کسی اور بات کا تھا۔ مگر شیزا کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے خود کو سنبھال لیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، سب گھر والے ہی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ صرف شیزا کی والدہ شبانہ بیگم لازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اپنا گھر دیکھ کر وہ لوگ حیران ہی رہ گئے۔ میں شیزا کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں، وہ ہے کہاں؟ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں اس کی شادی میں آئی ہوں۔ سیرت نے چہکتے ہوئے ان سے پوچھا۔ شبانہ بیگم حیران ہوتے ہوئے مسکرا دیں۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ دوسرے شہر سے سیرت شیزا کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، پھر سیرت کے والدین نے شہر بدل لیا، پر دونوں کی دوستی سلامت رہی۔ مگر آج وہ سرپرائز دینے کے لیے اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی وہاں لے آئی تھی۔ شیزا اوپر کمرے میں ہے، تم وہیں چلی جاؤ۔ انہوں نے اسے اشارہ دیا تو وہ ایکسائٹمنٹ چھپاتی جلدی سے اوپر چلی گئی۔ اسے پتا تھا شیزا کا کمرہ کون سا والا ہے، آدھا بچپن یہاں اس کے کمرے میں ہی تو گزرا تھا۔ سائرہ بابی اور مصطفیٰ بھائی کو نیچے کمرہ دے دیا گیا تھا۔ اس نے شیزا کا دروازہ بجانا چاہا، پھر یکدم اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ سرپرائز دینا چاہیے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ لاکڈ نہیں تھا۔ دبے قدموں وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اے سی کی ہنکی میں ڈوبا ہوا پرسکون سا کمرہ تھا۔ بیڈ بالکل سامنے ہی تھا، جہاں شیزا سر تک لحاف اوڑھے لیٹی تھی۔ سیرت نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے شیزا کا سر یا پاؤں کہیں نظر نہیں آئے۔ اس نے شرارت سے اپنا نچلا لب کچلا اور ایک دم دڑم سے بیڈ پر شیزا کے اوپر جا گری تھی۔ شیزا کی بچی، میں تمہاری شادی میں آئی ہوں اور تم یہاں مزے سے اے سی آن کیے سو رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے دونوں بازو لحاف کے اندر چھپی شیزا کے گرد لپیٹے اور ایک ہاتھ سے پے در پے کئی مکے اس کے بازو پر برسا ڈالے۔ او مائی گاڈ شیزا، تم نے تو کوئی پراپر ٹریننگ کی ہے، کوئی جم جوائن کر لیا ہے کیا؟ جسامت تو دیکھو اپنی۔ اس نے اپنی گرفت برقرار رکھی اور ایک ہاتھ سے لحاف کھینچ کر شیزا کے چہرے سے اتارا، اور یکدم وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس وقت وہ جس سے بمشکل آدھے انچ کے فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی، شیزا نہیں تھی، بلکہ وہ تو کوئی مرد تھا، بھرپور جسامت والا مرد۔ شرٹ سے بے نیاز تھا، وہ سیرت کی پے در پے لگنے والے ضربوں سے ہی جاگا تھا، اور اس وقت سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا مطلب ہے شیزا کہاں ہے؟ اس نے یکدم گھبرا کر اٹھنا چاہا، مگر مقابل کا اپنی نیند ٹوٹنے کا شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے یکدم بازو سیرت کی کمر میں ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے واپس بیڈ پر اپنے برابر گرایا۔ میں ہی ہوں شیزا، دیکھو نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ سیرت کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ پلیز مجھے چھوڑیں، میں غلطی سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ سیرت نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر اس شخص کی گرفت مضبوط تھی، اور وہ غصے میں بھی تھا۔ محترمہ، کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بجاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اندر کون ہے، پھر جاتے ہیں، اور آپ تو اس گھر میں پہلے دکھائی نہیں دی، لگتا ہے آج ہی کہیں سے آئی ہیں، اور آتے ہی اتنا کانفیڈنس کے بغیر پوچھے آ کے مجھ سے گلے مل رہی ہیں۔ اور وہ بھاری آواز میں سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سیرت کا دل ڈوبنے لگا۔ بات تو اس کی سچ تھی، وہ شرمندگی سے زمین میں غرق ہو جانے کے قریب تھی۔ اب مجھے چھوڑیں پلیز، ورنہ میں شور مچا کر سب کو بلا لوں گی۔ اس نے ایک ہاتھ کا موقع اس شخص کے سینے پر مارا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سیرت کے گرد جگڑے اپنے بازو کو اس نے ایک جھٹکا دیا۔ سیرت کا دل دہل کر رہ گیا۔ میں کیوں چھوڑوں؟ میں تو خود شادی والے گھر میں ایک مہمان ہوں۔ اب انہوں نے اگر میری مہمان نوازی کے لیے ایک حسین و جمیل کم عمر لڑکی کو بھیج دیا ہے تو کون کافر انکار کرے گا؟ مجھے تو پہلے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس شخص کا لہجہ بدل گیا۔
बगौर सीरत पर निगाहें जमाई इसने सर से लेकर पैर तक इसका जायज़ा लिया। सीरत का लहू रगों में ही मुंजमद हो गया। कोई है, बचाओ मुझे, यकदम चिल्लाई, मगर इसकी आवाज़ बुलंद होने से पहले ही से आंखों वाले इस शख्स ने सीरत के लबों पर अपना हाथ जमा दिया। अरे डरने की ज़रूरत क्या है, किसी को पता नहीं चलेगा तुम खुद यहाँ आई हो। वैसे चॉइस अच्छी है तुम्हारी ख़ानदान की लड़कियाँ भी ऐसे ही छुप छुप कर मुझे पसंद करती हैं। वो वाज़िया तौर पर सीरत को चढ़ा रहा था। सीरत का होंठ यकदम खोल उठा। इशस की बात ने इसे सर से लेकर पैर तक सलगा दिया था। बाढ़ में जय सारी एहतियात इसने दिल ही दिल में सोचा और पूरी कुव्वत से इसे अपने गिर्द कसी हुई इशस के बाजू को खुद से दूर हटाया। इशस ने इत्मीनान से करवट ली और कोहनी के बल लेट कर दिलचस्पी से सीरत का जायज़ा लेने लगा, जो फूली सांसों के दरमियान बिस्तर से उतर कर अपना लिबास दुरुस्त कर रही थी। शीज़ा कहाँ है? कौन हैं आप? यहाँ इसके कमरे में क्या कर रही हैं? मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी। रोहान सी होते हुए इसे और कुछ समझ न आया तो वो इसी पर बरस पड़ी। कोहनी के बाद लेटे जहां ज़ेब खान के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखरी। तुम कुछ देर यहाँ बैठो तो सही, मैं तुम्हें अपना सारा तारुफ करवा दूंगा। पर पता नहीं तुम्हें अब जल्दी क्यों आई हो? तुम अपनी मर्जी से ही हो। इसने झटके से लहाफ अपने ऊपर से उतारा और उतर कर रैन इसके सामने खड़ा हुआ था। शर्ट से बेनियाज इसका जिस्म साफ बता रहा था। वो बाकायदगी से जिम जाता है। सीरत ने घबरा कर दाएं बाएं देखा। कमरा तो शीज़ा के ही था। पता नहीं गलती इससे कहाँ हुई थी। वो रहानसी होने लगी। जहां सेब को इस पर तरस आया। वो सुरख रंग के लिबास में मुलबुस बेहद थकी हुई लग रही थी। लंबे बाल अब पोनी की कैद से निकल निकल कर आज़ाद हो रहे थे। छोटी सी नाक खफ़त से गुलाबी पड़ रही थी। जहां ज़ेब ने यकदम इसकी कलाई पकड़ी। मैं जहां ज़ेब हूँ, शीज़ा के भाई वहाब का दोस्त। ये कमरा आज की रात मेरे पास है। तुम्हारी दोस्त यहीं कहीं किसी कमरे में सो रही होगी। इसकी शादी है ना, और मेरी शादी हो नहीं रही। अगर तुम अगले 5 मिनट भी यहाँ खड़ी रही तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है। ऐसा हुस्न देकर मैं तो ज़्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इसका अंदाज़ा इंतहाई खतरनाक हो गया था। सीरत को इसकी सांसें अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस हुई तो वो एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाती कमरे से बाहर भागी। बाहर आकर भी वो रुकी नहीं। उल्टे कदमों सीढ़ियां उतरकर नीचे लाउंज में जा खड़ी हुई। पुलिस सांसों पर काबू पाते इसे इंतहाई खौफ महसूस हो रहा था। बार बार वह खुद को कोस रही थी कि बगैर दस्तक दिए कमरे के अंदर क्यों गई। वो तो जैसे कोई भूखा दरिंदा था जो इसे नोचने को बेताब था। ऊपर कमरे में इसके बाहर निकलते ही जान ज़ेब के लबों से एक बेसाता कहका फूटा। बालों में हाथ फेरते इसने मुड़कर आईने में अपने आप को देखा। वाकई वो इसलिए में किसी भी लड़की को दहशत ज़दा कर सकता था। बेवकूफ़ लड़की। रात के इस पहर अगर मुझे और इसे कोई एक साथ देख लेता तो पता नहीं कौन सी कहानियां बना लेते। सॉरी अजनबी लड़की, तुम्हें डराने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ा ताकि आइंदा तुम ऐसा कोई बेवकूफ़ाना काम ना करो। वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए पलट कर लेट गया, मगर नींद आंखों से दूर जा चुकी थी। आंखों में बस वही सुर्ख लिबास वाली लड़की घूम रही थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अरे सीरत, तुम यहाँ क्यों आ गई? शबाना बेगम सायरा और मुस्तफ़ा भाई को सोने के लिए कमरा दे चुकी थी और अब खुद भी सोने जा रही थी। जब उन्होंने सीरत को हवास बहता अंदाज में सीढ़ियों के पास खड़े देखा। वो दरअसल मुझे शीज़ा का कमरा नहीं मिला, आप मुझे वहाँ ले जाएं प्लीज़। खुद को संभालते इसने बमुश्किल इनसे कहा। शबाना बेगम सर हिलाकर सीढ़ियाँ चलने लगी। इसे अपने पीछे आने का कहा। उन्होंने इशारा किया तो वो रुकी नहीं। जहाँ ज़ेब के कमरे के सामने से गुजरते इसने चोर नज़रों से दरवाज़ा देखा। दरवाज़ा बंद था। वो तीर की तरह आगे गुजर गई। शीज़ा का कमरा आगे वाला था। वहाँ पर बेखबर सो रही थी। शबाना बेगम ने इसे जगाया तो पहले तो वो जी भर के हैरान हुई, फिर एकदम सीरत से लपट गई। तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं, और तुम्हें इजाज़त कैसे मिल गई आने की इस बिलाल फरीद से? शीज़ा ने गोल गोल आंखें घुमाते पूछा। सीरत बमुश्किल मुस्कुराई। अच्छा बस अब मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसका सारा मूड ख़राब हो चुका था। फ्रेश होकर जब वो सोने के लिए लेटी तो इसे जहान ज़ेब पर जी भरकर गुस्सा आया था। पता नहीं मुझे हर जगह घटिया लोग ही क्यों मिलते हैं, किस्मत ही ख़राब है मेरी। करवट बदल इसने सोने की कोशिश की, मगर रह रहकर दो मुस्कुराती आंखें इसके तस्वर में उतरी जा रही थी। सुबह वो दिन चढ़ते तक सोती रही। शीज़ा ने ही झंझोड़ कर इसे उठाया तो वह बमुश्किल आंखें खोलती उठ बैठी। सुबह से दोपहर हो गई। मैडम, तुम मेरी शादी में शिरकत के लिए आई हो और यहाँ मज़े से सो रही हो। आज शाम को मेहंदी है मेरी। शीज़ा के हफ्गी भरे अंदाज पर सीरत ने अपने बिखरे बाल समेटे उठ गई। शीज़ा इसे अपने हमरा ऊपर से नीचे ले आई जहाँ खूब रौनक लगी हुई थी। सारा भाभी और मुस्तफ़ा भाई से लॉन्च में बैठे नजर आए। वो शीज़ा के वालिदैन के साथ बातें कर रहे थे। इन दोनों को खूब इज्जत मिल रही थी। क्यों ना मिलती। मुस्तफ़ा भाई इशफाक साहब के पुराने जानने वाले थे और सीरत तो यूं भी शीज़ा की बचपन की सहेली थी। दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था। तुम्हें क्या हुआ? क्यों मुंह बनाकर बैठी हो? शादी में आई हो या मिलाद शरीफ में? शीज़ा ने इसे टोका, जो दोनों पाँव समेट कर सोफे पर रखे मुसलसल अपने नाखून कुतर रही थी। शीज़ा को देखते पाकर वो एकदम रूहान से अंदाज में इसकी तरफ मुड़ी। कैसी शादी? पहनने के लिए मेरे पास एक जोड़ा भी नहीं। अब यहाँ लोग उससे मांग तांग कर कपड़े पहनूं, इतने चाव से मैंने शादी की शॉपिंग की थी। पूरा सूट केस ही वही रह गया। वो रूहान से अंदाज में बता रही थी और तभी इसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते लड़कों पर पड़ी। सब नए कपड़ों में मुलबुस फ्रेश लग रहे थे। इनमें से एक
کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سیرت کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ جہان زیب تھا، سفید رنگ کے کرتے میں ملبوس، آستین کونیوں تک فولڈ کیے، وہ بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ سیرت نے غصے سے اپنا منہ ہی دوسری طرف کر لیا۔ یار تمہارا پرابلم تو واقعی سیریس ہے۔ تم قد میں مجھ سے لمبی ہو، میرے کپڑے بھی تمہیں پورے نہیں آئیں گے۔ شیزا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ایسا کرو تم یہاں کی مارکیٹ سے اپنے لیے مہندی اور بارات کا ڈریس خرید کر لے آؤ، تمہارے بھائی کے لیے روپے پیسے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شیزا نے اسے آپشن دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اب یہی کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ بھائی سے شادی میں لے آئے تھے، یہی بہت تھا۔ اب واپس جا کر اس کا سوٹ کیس تو لانے سے رہے۔ ٹھیک ہے، پر میں مارکیٹ جاؤں گی کس کے ساتھ؟ وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیزا نے اپنا موبائل اٹھایا۔ میں وہاب بھائی سے کہتی ہوں، وہ تمہیں مارکیٹ لے جاتا ہے، لیکن جلدی آ جانا تم، مجھے مہندی میں تیار کرنا ہے۔ شیزا نے تاکید کی تو وہ جلدی سے مصطفیٰ بھائی سے ATM کارڈ لے کر باہر نکل آئی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ گیٹ کے باہر سفید رنگ کی گاڑی اس کے منتظر تھی۔ چلیں وہاب بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھے بغیر کہا۔ جو حکم میڈم آپ کا۔ ویسے مجھے آپ پہلی دفعہ دیکھنے پر لگا تھا کہ آپ کے اندر ذہانت کی شدید کمی ہے۔ جانی پہچانی سی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہاب کی بجائے جہان زیب تھا۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شیزا نے وہاب بھائی کو بھیجنے کا کہا تھا۔ وہ سر تپا جہان زیب نے ہلکا سا سر کو ہام دیا۔ شادی والے گھر میں دلہن کا بھائی سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں اس چھوٹے موٹے فالتو کام اس کے دوست کرتے ہیں، مجبوراً آپ کو مجھے لے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ واضح طور پر اسے چڑھا رہا تھا۔ سیرت کا دماغ گھوم گیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا احسان کرنے کی، اور یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے میرے پاس۔ شادی میں پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ کیا کروں گی میں شادی میں؟ بغیر کپڑوں کے شادی میں شرکت کروں؟ وہ سلک کر بولتے بولتے یکدم چپ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اتنا غلط جملہ بول گئی ہے۔ جہان زیب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ سیرت نے اپنا پورا روح ہی دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ آخر یہ شخص ایسا کیوں ہے؟ اس کے سامنے میں اپنا کنٹرول کھونے لگ جاتی ہوں۔ میں اتنی پاگلوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہوں اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنا سر نوچے۔ جہان زیب خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ مارکیٹ شیزا کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ وہ بیزاری سے کارڈ پکڑے اندر چلی آئی۔ اسے تو ایک ڈریس خریدنے میں گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ ساتھ سائرہ بھابھی جایا کرتی تھی۔ وہ مشورے دیتی، تب جا کر سیرت کو ڈریس فائنل کرتی تھی، مگر اب وہ بے بس ہونے لگی۔ ایک کے بعد ایک ڈریس پکڑ کر چھوڑتے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا خریدے۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے۔ تم اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ کیا تمہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا؟ جہان زیب پچھلے 2 گھنٹے سے انتہائی صبر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ سیرت جھنجھلا کر مڑی۔ کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں ان سب میں سے مجھ پر کوئی سوٹ بھی کرے گا یا نہیں۔ اس نے زرد رنگ کی ایک فراک کو ہلکا سا چھوا۔ جہان زیب نے بغوری سے دیکھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے کرتا شلوار میں دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ گلابی رنگت والی لڑکی سخت پریشانی کا شکار تھی۔ جہان زیب نے وہ زرد فراک نکال کر اس کے سامنے کی۔ تم پر یہ بہت خوبصورت لگے گی، ٹرسٹ می، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ جہان زیب نے اعتماد سے فراک اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ چپ رہ گئی۔ لیکن یہ کلر تو بالکل مجھ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ جہان زیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں سوٹ نہیں کرتا؟ فیئر رنگت ہے تمہاری۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ سیرت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بلال کہتے ہیں کہ کوئی بھی برائٹ کلر مجھ پر اچھا نہیں لگتا، وہ تلخی سے کہتی مڑ کر کسی اور ڈریس کا جائزہ لینے لگی۔ جہان زیب چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ گھڑی میں 3:45 کا وقت ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مہندی کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ سیرت کے سامنے آیا۔ جاؤ یہ فراک پہن کر آؤ، تم اس میں بہت خوبصورت لگو گی، ٹرسٹ می۔ اس کے انداز اور الفاظ میں ایسا کچھ ضرور تھا۔ سیرت لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ گھبرا کر اس نے فراک جہان زیب کے ہاتھ سے لی اور ٹرائل روم کی طرف چلی گئی۔ جہان زیب کو شدت سے اس کا انتظار تھا۔ وہ آئے تو بس واپسی کے لیے نکلے، لیکن جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ زرد رنگ کی فراک میں الجھے بکھرے حلیے کے باوجود بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ بس ڈن، تم یہ ڈریس خرید رہی ہو؟ سیرت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جہان زیب کا حوصلہ دلانا اسے اچھا لگا تھا۔ مہندی اور بارات کا ڈریس خرید کر وہ لوگ واپس آئے تو تقریب شروع ہونے والی تھی۔ وہ ڈریس تھامے تیزی سے شیزا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کتنی دیر لگا کر آئی ہو؟ مصطفیٰ بھائی کب سے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ شیزا نے اسے جھاڑ پلائی۔ وہ جلدی جلدی سے تیار کرنے لگی۔ شیزا کے سسرال والے مہندی لے کر آ چکے تھے۔ وہ دونوں تیار ہو گئی تو نیچے آئیں جہاں شیزا لائٹ گرین کلر کے ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، تو وہیں زرد فراک اور موتی کی کلیاں بالوں میں لپیٹے سیرت دل کو چھو جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ لاؤنج کی لائٹنگ درست کرتے جہان زیب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر اسے اپنی نگاہ پلٹنا بے حد مشکل لگا۔ وہ نازک سی لڑکی سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ جہان زیب، میرا ایک مہمان آیا، اسے گیٹ سے اندر لے آؤ۔ مصطفیٰ بھائی نے اسے پکارا تو سیڑھی سے نیچے اتر آیا۔ کیا کرنا پڑتا ہے دوستوں کے لیے، ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہوں، کچھ دیر پہلے الیکٹریشین بنا رکھا تھا اور اب گھر کا ملازم۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا دروازے تک چلا۔
वाकई एक 30 बरस का मैच्योर सा शख्स हाथ में एक हैंड कैरी पकड़े खड़ा था। जहांज़ेब इसे अंदर ले आया। मुस्तफ़ा भाई, आपके मेहमान आ गए हैं। जहांज़ेब ने इन्हें आवाज़ लगाई, जो सीरत को साथ लिए बाहर गार्डन में खड़े थे। दरख्तों के गिर्द लिपटी रोशनियों का अक्स सीरत के चेहरे पर पड़ रहा था। साकत खड़ी थी। अरे बिलाल, तुम आ गए। मुस्तफ़ा भाई ने इन आने वाले से मुसाफा किया। अंदर की तरफ जाता जहांज़ेब ठटक गया। ये लफ्ज़ तो इसने सीरत के मुँह से भी सुना था। वो बेअख्तियार पलटा। मेरी मंगेतर अपने शहर से दूर सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर एक पराए घर में रह रही है। वैसे मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने इजाज़त दे दी थी। अब कब ख़त्म होगी तुम्हारी ये शादी? मुझे अपनी शादी की भी डेट अनाउंस करनी है। दोहांस भरे अंदाज में बिलाल ने सीरत को मुखातब किया। जहांज़ेब अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। बिलाल इसका मंगेतर था और जिस तरह इस्तकहाक भरे अंदाज में वो सर से लेकर पैर तक सीरत का जायज़ा ले रहा था, इसके बेहद करीब खड़ा था। जहांज़ेब ने बेहतियार अपने लाभ खींच लिए। अरे बस, कल शाम शादी ख़त्म होते ही फ़ौरन वापसी के लिए निकल जाएंगे। दरअसल शीज़ा इसकी बचपन की दोस्त है ना। मुस्तफ़ा भाई ने माजरत हवा अंदाज में वजाहत दी। बिलाल ने अपना सर झटका। आप प्लीज़ अंदर जाएं, मुझे सीरत से कोई बात करनी है। इसने मुस्तफ़ा भाई को जैसे हुक्म दिया था, वो जज्बस होते हुए पलट कर अंदर चले गए। जहांज़ेब ने वाज़ेह तौर पर देखा, सीरत अपने वजूद की लर्जिश छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफ़ा भाई के जाते ही बिलाल ने पूरे इस्तहाकाक से सीरत का हाथ थाम लिया। वो खुद में सिमट कर रह गई। किसने कहा था तुम्हें ये जर्द रंग की फ़्रॉक पहनने को? लगता है मेरी बातें भूलने लगी हो तुम। तुम्हें पता है ना, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं। वो ज़रा सा इसके चेहरे पर झुका तो हंस भरे अंदाज में कह रहा था। जहांज़ेब को इस शख्स से बिला वजह की नफरत हुई। सीरत, तुम्हें शीज़ा अंदर बुला रही है। वो खुद को रोक न सका। इसकी आवाज़ पर सीरत और बिलाल दोनों ही मुड़ कर देख। बिलाल की आंखों में जहाँ नापसंदीदगी उतरी, वहीं सीरत को इस लम्हे जहांज़ेब अपना मसीहा लगा था। इसने तेज़ी से बिलाल के हाथों से अपना हाथ छुड़वाया और तकरीबन भागते हुए अंदर चली गई। एक सर्द निगाह बिलाल पर डालते जहांज़ेब भी अंदर की तरफ मुड़ गया। इसका दिल हाली हाली सा हो रहा था। अंदर हर कोई तैयार हो चुका था। मेहंदी की रस्म का वक्त हो रहा था। शीज़ा के ससुराल वाले भी मेहंदी लेकर आ चुके थे। रस्म के लिए बाहर गार्डन में स्टेज बनाया गया था। खूबसूरत लाइटिंग करके खूबसूरत सजावट कर दी गई थी। अंदर अगरचे एसी मुसलसल चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सब लोग निकल कर बाहर आए तो खुशगवार हवा ने इनका इस्तकबाल किया। सीरत शीज़ा के साथ साथ ही बाहर आई थी। इसका चेहरा वाज़ह तौर पर बुझ चुका था। जहांज़ेब ने वहाब के साथ खड़े बगौर इसका जायज़ा लिया। कई दफ़ा इसे वो टिशू से अपनी आंखों का कोना साफ करती दिखाई दी। ख़वातीन मेहंदी की रस्म कर रही थी। मुख्तलिफ वेटर्स शीशे के गिलासों में जूस और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर इधर उधर फिर रहे थे। ऐसे में जहांज़ेब ने इसे तलाशना चाहा। वो इसे इस स्टेज से कुछ फासले पर बिलाल के हमरा खड़ी दिखाई दी। बिलाल इससे किसी बात पर बहस कर रहा था। इसके हाथों के मुसलसल इशारों और सुर्ख पड़ती रंगत बता रही थी वो किसी बात पर गुस्से में है। जबकि सामने खड़ी सीरत मुसलसल घबरा कर दाएं बाएं देख रही थी। जहांज़ेब का खून खौलने लगा। पता नहीं अब ये क्या कह रहा था। इतना तो इसे अंदाज़ा हो ही गया था कि बिलाल फ़रीद एक हकमियत पसंद इंसान है और वो सीरत को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। लेकिन मुस्तफ़ा भाई और सायरा भाभी क्यों इसके सामने इस कदर दबे हुए थे? क्या वजह थी आहर? जहांज़ेब ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई से सायरा भाभी सीरत की समेत जाती दिखाई दी। कुछ देर वहाँ खड़ी रहकर वो बिलाल फ़रीद को किस बात की वजाहत दे रही थी और फिर सीरत को लेकर पलट गई। जहांज़ेब का दिल बोझिल होने लगा। ठंडी हवा का झोंका इसे आकर टकराया तो इसने बेहतियात सर उठाकर देखा। आसमान पर काले स्याह बादल जमा हो गए थे। इससे पहले कि वो सब लोग समझ पाते, आसमान से यकदम मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। खवातीन की हल्की हल्की चीखें सबसे पहले बुलंद हुई थी। अपने कपड़े और मेकअप को बचा सभी अंदर की तरफ भागी। शीज़ा को भी शबाना बेगम ने घबरा कर स्टेज से उठा दिया। बारिश एकदम तेज़ी से बरसने लगी। इस पास पानी की एक चादर सी तन गई। साथ ही तेज़ चलने वाले आंधी के झकड़ों ने मौसम में यकदम ख़राब कर दिया था। जहांज़ेब भी पानी की तेज़ बौछार से भीग चुका था। लड़के तेज़ी से लाइटें और दीगर सामान समेट रहे थे, मगर बारिश ने इन्हें भी मोहलत नहीं दी। शीज़ा के वालिद इशफाक साहब ने सभी को अंदर जाने का इशारा किया था। हाँ वहाँ इस बारिश में बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यहीं छोड़ो और अंदर चलो। इनकी आवाज़ पर वहाब समेत सारे लड़के ही अंदर भाग गए। वहाँ गार्डन जो कुछ दिन पहले मेहमानों से भरा हुआ था, अब वहाँ सिर्फ बरसती बारिश दिखाई दे रही थी। जहांज़ेब ने एक तरफ तायराना निगाह सारे गार्डन पर डालते अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, तभी वो चौंका। इस स्टेज से कुछ फासले पर से जर्द रंग का एक हुलिया सा दिखाई दिया। सीरत, वो यहाँ क्या कर रही है? सारी लड़कियां खवातीन तो अंदर जा चुकी हैं। वो बेहतियात घबरा गया। चंद कदम नज़दीक जाने पर इसे अंदाज़ा हुआ सीरत ही थी। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। इसके लंबे घने बाल भीग कर इसकी पुश्त और गर्दन पर चिपके हुए थे। जर्द फ़रॉक भी बरसती बारिश में भीगी हुई थी। सीरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, यहाँ बीमार हो जाओगी। कुछ फासले पर खड़े होकर जहांज़ेब ने आवाज़ लगाई। इसने ऐसगी से अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो रो रही थी। बारिश के बावजूद जहांज़ेब को अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी।
इसका दिल धक सा रह गया। बेहतियार वो इसके पास आया और ज़मीन पर झुकी अपने पैर में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। बरसती बारिश बार बार इसकी आंखों को धुंधला देती, तो एक हाथ से अपने चेहरे और आंखें साफ करती, एक दफ़ा फिर अपने पैर की जानब मुतवज्जो हो जाती। जहाँ ज़ेब ने देखा इसके पैर में से खून रस रहा था। क्या हुआ? क्या लगा है तुम्हारे पाँव में? वो घबरा कर इसके पास आया। पता नहीं, यहाँ किसी वेटर के हाथ से ट्रे गिर गया था, सारे कांच टूट कर बिखर गए। मैंने हील पहनी हुई थी। मैंने कहा कि कहीं हील से फिसल न जाऊं, इसलिए जैसे ही मैंने हील उतारी, ये कांच मेरे पाँव में चुभ गया। अब एक कदम भी नीचे नहीं रखा जा रहा। वो दर्द को ज़ब्त करती बड़ी मुश्किल से बोली थी। जहाँ ज़ेब ने पंजों के बल झुककर देखा, पाँव के तलों में से खून बह रहा था, मगर कांच दिखाई नहीं दे रहा था। कांच जिल्द के अंदर उतर गया था। मुझे देखने दो। जहाँ ज़ेब ने आहिस्तगी से इसके पाँव अपने हाथ में ले लिया। वो करंट खाकर पीछे हटी। नहीं, आप अंदर जाएं। मुस्तफ़ा भाई को बुला दें प्लीज़, वो दर्द के बर्दाश्त करती बोली। जहाँ ज़ेब ने एक मलतमाती निगाह इस पर डाली। क्या हो गया है तुम्हें सीरत? सब लोग अंदर हैं, कांच निकालने दो, वरना बीमार पड़ जाओगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसने एक बार फिर इसके सफ़ेद पाँव अपने हाथ में लिए। आहिस्तगी से तलवे पर उंगली फेरने पर इसे अंदाज़ा हुआ कांच वाकई जिल्द के अंदर उतर गया था। सीरत के लबों से सिसकी निकली। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आराम से, वो भीगी हुई आवाज़ में बोली। इस पर बरसती बारिश का शोर मज़ीद बढ़ गया था। जहाँ ज़ेब एक लम्हे के लिए इस मंज़र को खो गया। बरसती बारिश में वो बिल्कुल इसके सामने बैठी थी। वो दोनों सर से लेकर पैर तक भीग चुके थे। इस पास और कोई नहीं था। कोई अजीब सा फसूं था जो इन दोनों को अपने घेरे में लेने लगा। जहाँ ज़ेब ने घबरा कर अपनी निगाह चुराई, इसके जज्बे पे तैयार होने लगे थे। चीखना मत। अच्छा, मैं कांच निकालने लगा हूँ, इसने सीरत को कहा। इसने जल्दी से साथ हिला दिया, ना हो न अंगूठे की मदद से। जहाँ ज़ेब ने किसी न किसी तरह कांच का वो टुकड़ा बाहर खींच ही लिया था। कांच के बाहर निकलते ही खून तेज़ी से बहने लगा। सीरत के लबों से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। नाउ यू आर सेफ, लेकिन बारिश रुकते ही किसी डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए ताकि प्रॉपर बैंडेज की जा सके। इसने सहारा देकर सीरत को उठाया। वह मुश्किल पैर ज़मीन पर रख पा रही थी। जहाँ ज़ेब के हाथ का सहारा लेकर वह मुश्किल चल रही थी। बारिश की रफ्तार मध्यम हो चुकी थी। इस पास का मंजर अब इतना धुंधला नहीं रहा था। अभी अभी वो अंदरूनी सीढ़ियों से कुछ ही दूर थे कि जब बिलाल फरीद फ़ोन कान से लगाए बाहर निकला। इन दोनों को एक साथ आते देखकर इसके माथे पल बढ़ पड़े थे। सीरत ने भी इसे देख लिया था। इसने घबरा कर अपना हाथ जहां ज़ेब के हाथ से खींचा। इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वाह, मैं परेशान हूँ कि मंगेतर साहिबा ना जाने कहाँ चलेगी, और यहाँ तो बाकायदा बरसती मूवमेंट इंजॉय किए जा रहे हैं। बिलाल ने बुलंद आवाज़ में तंजिया भरे लहजे में कहा। सीरत ने बेबसी से इसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़, उन्होंने मेरी मदद की है, मेरे पाँव में कांच चुभ गया था। इसकी आवाज़ गुलोगेर हुई। जहाँ ज़ेब को सख्त बुरा लग हाँ, वो तो दिख ही रहा है, मोहतरमा ने कितनी मदद की है। साफ साफ मज़े ले रहे हैं बारिश का, वो भी मेरी मंगेतर के साथ। और एक मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे कपड़ों का सूटकेस यहाँ लाने के लिए कराची से उठकर एक पराई शादी में आ गया हूँ। वो इंतहाई कोई गिरा हुआ इंसान था। जहाँ ज़ेब ने लब खींच कर खुद को कुछ कहने से रोका। सीरत घबरा कर बिलाल के बराबर से गुजरती अंदर दाखिल हो गई। अंदर मौजूद मेहमानों में से चंद एक ने इनकी आवाज़ सुन ली थी। अब सभी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या मामला है। सीरत की आंखों में नमी उतरने लगी। बिलाल और जहांज़ेब के दरमियान सर्द नज़रों का तबादला हुआ और फिर बिलाल मुड़कर अंदर चला गया, जबकि जहांज़ेब वही लॉन्च के किनारे पर टिका अंदर देखता रहा। वो मुसलसल कुछ सोच रहा था। मेहंदी की तकरीब तो बारिश की वजह से दूरी ही रह गई, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बारिश के रुकते ही शीज़ा के ससुराल वाले वापस चले गए। घर में बस वही मेहमान रह गए जो दूर दराज से करने के लिए आए हुए थे। शीज़ा सीरत को अपने कमरे में ले आई। वो शदीद गुस्से में थी। शक्ल देखी है तुमने अपने मंगेतर की? इतने घमंडी और मुतकब्बर इंसान है। क्यों मंगनी की है तुमने हर इसके साथ? और एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे भाई और भाभी इससे इतना डर क्यों रहे हैं? हर जगह इतनी इंसल्ट कर रहा है वो तुम्हारे भाई की, और तुम्हारे साथ तो इसका रवैया ऐसा है जैसे तुम इसकी खरीदी हुई कोई गाय हो। शीज़ा ने अपनी ज्वेलरी उतार उतार कर पटकते हुए कहा। सीरत के चेहरे पर बेबसी फैल गई। कुछ वक्त पहले मुस्तफ़ा भाई का कारोबार बिल्कुल डूब गया था। वो करोड़ों रुपए के कर्जदार हो गए थे, और तब उन्होंने बिलाल फरीद से कुछ रकम कर्ज ली थी। बिलाल ने ही इनका कारोबार दोबारा खड़ा करने में इनकी मदद करी। तब ही तो इसने मुझे पसंद किया था और मुझसे मंगनी की। बस यूँ समझो वो मुझे अपनी मालकियत ही समझता है, इसलिए मुस्तफ़ा भाई भी बस इससे ज़रा दबे दबे रहते हैं। वो थके थके अंदाज में कह रही थी, एक हाथ से अपने पैर को हल्का हल्का दबाती वो परेशान थी। शीज़ा ने बगौर इसे देखा। इसकी रंगत गुलाबी पड़ रही थी। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो गया? कितना बेशर्म है तुम्हारा मंगेतर, तुम्हें पाँव में कांच लगा, बजाय तुम्हारा ख्याल करने के वहाँ नीचे लाउंज में बैठकर शोहियाँ भी काट रहा है। अपनी दौलत और अपनी ताकत के किस्से सुना सुना कर इससे अच्छा तो वो जहांज़ेब है। करोड़ों की जायदाद तो इसकी भी है, लेकिन कितना घुल मिल कर रह रहा है सबके साथ। और तो और तुम्हें जहमी हालत में पकड़ कर अंदर भी लाया था। शीज़ा की बात पर सीरत का दिल यकदम ज़ोर से धड़का। इसने गड़बड़ा कर अपना पाँव वापस नीचे रख लिया। क्या हो गया शीज़ा? बहुत फ़र्क है जहाँ ज़ेब और बिलाल में। बिलाल का ताल्लुक मशहूर सियासी पार्टी से है।
ताकत का घमंड तो होगा ना, वो जो चाहता है वो कर सकता है। बेबसी से अपना लाभ कुचलते हुए जैसे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। शीजा ने बगौर इसका चेहरा देखा तो इससे डरती हुई सिर्फ और तुम इससे डरती हो सिर्फ, है ना? तुम्हें इससे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। सीरत झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। इन सब बातों का क्या मकसद है शीजा? मैंने तुम्हें बताया है अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। तुम खामोशी से अपनी शादी की तैयारियां करो। इसने शीजा को शीशे की तरफ मोड़ा। शीजा मुस्कुरा भी ना सकी। वो तो अपनी दोस्त के लिए बेहद परेशान हो रही थी, जिसका मुस्तकबिल इसे तारीक नजर आ रहा था। सीरत के जख्मी पाँव में तकलीफ थी। वो जल्द ही दवा खाकर सोगी। रफ्ता रफ्ता पूरे घर में अंधेरा छाने लगा। वो रात का न जाने कौन सा पैर था जब सीरत को यूं लगा कोई इसे आवाज़ देकर बुला रहा हो। चंद लम्हे तक सोई जागी कैफियत में रही और फिर यकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? इसने घबरा कर पूछा। कमरे की नीम अंधेरे माहौल में इसे बेड पर शीजा बैठी हुई नजर आ रही थी, मगर सिर्फ शीजा ही नहीं, इसका भाई वहाब भी दरवाजे के पास चौकन्ना अंदाज में खड़ा था। ये उठ गई है, अब जल्दी से देखें कॉरिडोर में कोई है तो नहीं। शीजा ने वहाब को मुखातब किया। इसने हस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, कोई नहीं, लेकिन ज़रा जल्दी करो, इसने कहा। सीरत हैरानी से इन दोनों को देख रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? वहाब भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कमरे में। सीरत ने बेहतियात दुपट्टा लिया। शीजा ने इसका हाथ पकड़कर इसे बेड से नीचे उतारा। ज़्यादा सवाल जवाब करने का वक्त नहीं, जल्दी चलो। तुम्हें तो अपनी परवाह है ही नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी खूब परवाह है। इसने सीरत का जूता इसके सामने रखा। सीरत सुन सी रह गई। कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे बताओ तो सही। वो हैरान परेशान थी, मगर इसने सीरत का बाजू पकड़ा और इससे साथ लिए कमरे से बाहर निकल आई। अब आगे आगे वहाब था, जो मुहतात अंदाज में दाएं बाएं देखता है, फिर इन्हें इशारा करता। तो शीजा इसका बाजू थामे जल्दी से चल कर आगे बढ़ा जाती। यूं ही चलते चलते वो लोग घर से बाहर निकल आए। सीरत के पाँव में अब दर्द होने लगा था। इसने झिंझलाकर शीजा को देखा। हर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। वो कच्ची नींद से जागी हुई थी, इसलिए भी कुछ ज्यादा चिढ़ रही थी। शीजा ने कोई जवाब नहीं दिया। दफ्तन इनके सामने एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकी। वहाब ने जल्दी से आगे बढ़कर कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। शीजा ने धकेलने वाले अंदाज में सीरत को अंदर बैठा दिया। वो गंग रहेगी। कार के अंदर सायरा भाभी बैठी हुई थी। भाभी आप, ये किसकी गाड़ी है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? आप सब लोग मुझे आप मुझे बताएंगे भी ये सब क्या हो रहा है? वो एकदम बुरी तरह से घबरा उठी थी। पहले मुझे तो बैठने दो। शीजा ने इसे टोका दिया। वो अभी तक गाड़ी के बाहर खड़ी थी। झुंझलाते हुए सीरत जरा आगे को खिसकी तो शीजा जल्दी इसके बराबर बैठ गई। वहाब अगली सीट पर बैठा और इनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। देखो सीरत, तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का बस यही एक तरीका है। बिलाल ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे भाई मुस्तफ़ा वो तो इससे इस कदर हौसला है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। बस इसलिए हर एक की हर जायज़ नाजायज़ बात मानते रहते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा तुम्हारा निकाह किसी और से हो जाएगा तब फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। सायरा भाभी की बात पर वह सुन रह गई। निकाह मेरा, लेकिन किसके साथ? आर आप क्या कह रही हैं? वो एकदम बुरी तरह से घबराई। इसी घबराहट के आलम में इसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर पड़ी। सीरत को लगा वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि जहांज़ेब बैठा था। इत्मीनान भरे अंदाज में गाड़ी ड्राइव करते इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मुझसे निकाह हो रहा है तुम्हारा, इसने मुड़कर सीरत का जवाब दिया, और वो कुछ बोल भी ना सकी। जहांज़ेब अच्छा इंसान है। जितनी दौलत बिलाल के पास है इतनी ही जहांज़ेब के पास। वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ यही है जो तुम्हें बचा सकता है। सारा भाभी ने इसका हाथ दबाकर कहा। वो एकदम सुरह पड़ी। लेकिन ये मुझे क्यों बचाएंगे? ठेका ले रखा है क्या इन्होंने मुझे बचाने का, या फिर ये लड़कियों से निकाह करके इन्हें जुल्म मर्दों के कैद से आज़ाद कराने की कोई सरोस देते हैं? वो एकदम जैसे फट पड़ी थी। इसे जिल्लत का एहसास हुआ था। आगे बैठे जहांज़ेब ने सुकून से पीछे मुड़कर देखा। क्योंकि मैं तुम्हें इस शख्स के साथ नहीं देख सकता, मुझे जेलसी होती है। वो इस काबिल नहीं कि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की का शौहर बने। अपनी ताकत और दौलत के किस्से सुनाने के लिए इसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। हम तुम्हारी कुर्बानी क्यों दें? वो इतने इत्मीनान से बोला कि लम्हे भर के लिए सीरत चुप की चुप रह गई। सारा भाभी मुस्तफ़ा भाई क्या सोचेंगे? मैंने घर से भाग कर निकाह कर लिया, ये सब कुछ गलत है। सीरत कमज़ोर पड़ने लगी थी। आगे बैठे जहांज़ेब की सहरज़दा करने वाली आंखों ने इसे जैसे खामोश कर दिया था। सारा भाभी लम्हे भर के लिए मुस्कुराई। मैं इन्हें संभाल लूँगी, इसलिए तो चोरी छुपे तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं ना। वैसे मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ और मैं इस निकाह में शामिल हूँ, बल्कि मेरी ही मर्ज़ी से ये निकाह हो रहा है। तो फिर जब भागकर शादी वाली बात दोबारा ना करना। जहांज़ेब बहुत शिद्दत से तुम्हारा तलबगार है, तुम भी खामोश हो जाओ। उन्होंने डपट कर सीरत को चुप कराया। शीज़ा भी मुस्कुराती हुई ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। कितना एडवेंचर सा लग रहा है ना ये सब कुछ। गाड़ी से उतरते हुए इसने कहा। सीरत मिलाकर रह गई। इसे पता था मुस्तफ़ा भाई जितना प्यार करने वाले हैं इतना ही खतरनाक वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। बिलाल, इसका तो तसव्वुर करते ही सीरत को झिरझिरी आई। वो किसी अपार्टमेंट के सामने रुके थे। सीढ़ियाँ चढ़कर वो लोग ऊपर आए। ये जहांज़ेब का एक दोस्त का अपार्टमेंट है। वहाँ मौलवी मौजूद था, गवाहान भी पूरे थे, और यूं इन सब के सामने सीरत जहांज़ेब बन गई। निकाहनामे पर साइन करके वो चंद लम्हे तक साकत खड़ी रही। जहांज़ेब ने मुस्कुराते हुए सीरत के हाथ पेन से ले लिए। खुश तो मुझे होना चाहिए, ये मेरी खुशकिस्मती है। क्या मैं तुम्हारा शौहर बन रहा हूँ, लेकिन तुम तो स्टैचू बन गई हो।
اس نے शरारत भरे अंदाज में कहा। सीरत ने बेयकीन निगाहें उठाकर इसे देखा और यकदम फूट फूट कर रोने लगी। शीजा, सायरा भाभी और वहाब तीनों ज़रा फासले पर थे। किसी को अंदाज़ा ना हो सका कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जहांज़ेब इसको यूं रोने पर बुरी तरह घबराया। सीरत, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। क्या हो गया है तुम्हें? इसने आहिस्तगी से सीरत के दोनों हाथ इसके चेहरे से हटाए। वो सिसकियाँ ले रही थी। मुझे जान से मार देगा। मैं पिछले कई बरसों से इसके मंगेतर हूँ। मैं जानती हूँ मुझ पर ऐसे हक जमाता है जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने पर। वो अपना खिलौना किसी और को क्यों देगा? वो आपको भी मार देगा और मुझे भी। अब मुझे वो बुरी तरह खौफज़दा लग रही थी। जहांज़ेब ने गहरी सांस ली। ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। बिलाल फरीद, अब तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जहांज़ेब खान की बीवी हो। मैं इसे तुम्हारे सामने बेबस कर दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। इसकी आंखों में आंखें डाले इतने जज्बे से कह रहा था कि सीरत के बहते आंसू थम गए। सारा भाभी वापस आ रही थी। हमें चलना चाहिए। सुबह होने वाली है और दिन के वक्त में शीज़ा का निकाह है। जहांज़ेब, तुम्हें जो कुछ भी करना है शीज़ा के निकाह के बाद करना। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इसकी शादी खराब हो। सायरा भाभी की बात पर जहांज़ेब ने सर हिलाया। सायरा भाभी से बाजू थाम कर नीचे ले आई और यूं ही इनके साथ घसीटती हुई नीचे आ गई। इसे डर लग रहा था मगर एक अनजाना सा सुकून था जो इसके अंदर उतर रहा था। गाड़ी में इन सबको बैठाते जहांज़ेब ने चाबी वहाब के हवाले की। सीरत का दिल जोर से धड़का। क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? वो खौफ से जर्द हुई थी। जहांज़ेब ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मैं कल आऊँगा तुम्हें लेने, मेरा इंतज़ार करना। वो पीछे हट कर खड़ा हो गया। वहाब ने गाड़ी स्टार्ट की। वह मुंजमद से बैठी से दूर जाता देखती रही। जहांज़ेब ने एक पल के लिए भी इसे नज़रें नहीं हटाई थी। थक कर इसने सायरा भाभी के शाने पर सर टिका दिया। शीज़ा मुसलसल वहाब के साथ बातें कर रही थी। सायरा भाभी भी मुतमईन थी। सिर्फ एक वही थी जो खौफ से लर्ज रही थी। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा। शीज़ा इसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई। खौफज़दा थी मगर शीज़ा की तसल्ली होने से किसी हद तक इसके दिल पुरसकून कर दिया था। इसे अपने से ज़्यादा मुस्तफ़ा भाई की फ़िक्र थी। वो जानती थी बिलाल किस तरह इन्हें दबा लेता था। निकाह का वक्त सुबह का रखा गया था और दोपहर के करीब रुखसती थी क्योंकि शीज़ा के ससुराल वालों को इसे रुखसत करा के दूसरे शहर ले जाना था। इसलिए सुबह सुबह ही घर में शोर हंगामा शुरू हो गया। शीज़ा सुबह तैयार होने के लिए पार्लर चली गई। वो कल संबंधी से अकेली ही अपने कमरे में लेटी थी जब इसका मोबाइल बजा। बेजारी से इसने मोबाइल उठाकर देखा। अनजान नंबर से मैसेज मसूल हुआ। वही पीच कलर का ड्रेस पहना जो मैंने तुम्हें दिलाया था, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैसेज जहांज़ेब की जानिब से था। सीरत के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बेसाता शर्माई थी। बिलाल के साथ इतने सालों के ताल्लुक में से एक दफ़ा भी ये ज़हनी सुकून नसीब नहीं हुआ था जो जहांज़ेब के साथ चंद घंटों में महसूस करने लगी थी। वो एकदम फ्रेश होकर उठ बैठी। ज़हन से जैसे सारा बोझ ही उतर गया था। पीच कलर का ड्रेस शीज़ा ने पहले ही मुलाजमा से इस्त्री करवा कर अलमारी में टांग दिया था। वो कपड़े तब्दील करके आईने के सामने आ खड़ी हुई। आईने ने गवाही दी थी कि जहांज़ेब का कहा दुरुस्त था। पीच कलर के खूबसूरत से जोड़े में इसके अपनी रंगत भी वैसी ही हो रही थी। लंबे घने बालों को रोल्स करते हुए सीरत ने लंबों पर हल्की सी लिपस्टिक जमाई। तब ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाएं अंदर, इसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिए। से पता था कोई मुलाजमा होगी। बस अभी आ जाती हूँ। मुझे पता है मुझे देर होगी है। शीज़ा पार्लर से वापस आ गई क्या? इसने घड़ी में वक्त देखते मसरूफ़ से अंदाज में कहा और फिर पलट कर आईने पर नजरें डालते ही अपनी जगह मंजमद होकर रह गई। आईने में इसके अक्स के पीछे बिलाल फरीद खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वही रो वाला हुलिया, स्याह रंग का कुर्ता शलवार पहने, बाएं हाथ की रोलेक्स की कीमती घड़ी इसकी दौलत का मज़ारा दे रही थी। सिगरेट का कश लगाते इसने सर से लेकर पैर तक सीरत को देखा। ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तुमने? यहाँ से किसी से मांग कर पहने हैं क्या? वो सूटकेस जो मुझसे मंगवाया था, इनमें तो ये कपड़े नहीं थे। इसका अंदाज हक जताने वाला था। सीरत की रंगत सुरख पड़ी। अरे अब ये मत कहना कि मैंने खोल कर चेक क्यों किया। होने वाली बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी हर चीज़ पर नज़र रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो इत्मीनान से सोफ़े पर फैल कर बैठ गया था। सीरत की धड़कनें मंदब कर लड़ने लगीं। इसने मदद तलब नज़रों से दरवाजे की सिमत देखा जिसे बिलाल ने लॉक कर दिया था। अब यहाँ से बाहर चले जाएं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इसने धीमी आवाज़ में इसे टालना चाहा मगर बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों कुछ सोचेगा? तुम मेरे मंगेतर हो। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ इन बेकार लोगों के बीच में पड़ा हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना मसरूफ़ रहता हूँ और तुम हो के तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का भी कोई ख्याल नहीं। वो बेजारी भरे अंदाज में कह रहा था। सीरत ने अपना सर झटका। नामुमकिन था कि वो सीरत की वजह से यहाँ पड़ा हुआ है। इसे यकीन शीज़ा के वालिदैन में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता जब ही वो कल रात से यहाँ पर बर्चमान था। बिलाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये कपड़े बदलो यार और ये बालों को खुला छोड़ो। कोई खूबसूरत सा ड्रेस पहनो। ऐसा लग रहा है तुमने इतवार बाजार से खरीदा है।
ज़रा बाजू तो देखो इसे कैसे हैं, इसके कैसे हैं। इसने तंज़ ये भरे अंदाज में सीरत की एक आस्तीन को छुआ। वो कसमसाकर पीछे हटी थी। मुझे चेंज नहीं करना, मुझे यही कपड़े पसंद हैं। आप हाँ मुझ पर ज़्यादा रोब मत जाड़ा करें। पता नहीं इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। इसका जवाब सुनते बिलाल फरीद हक्का बक्का रह गया। समझाया करते थे मेरे बाबा जान मुझे लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने शहर से निकल कर दूसरे घर आई नहीं और किस तरह ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। कोई ज़रूरत नहीं अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने की, अभी चलो मेरे साथ। वापस मेरी फैमिली अमेरिका से वापस आ रही है, इसी हफ्ते हमारा निकाह होगा। इसने सीरत का बाजू दबोचा, वो झुरझुरी सी लेकर रह गई। हमारा निकाह नहीं हो सकता, आप मेरा बाजू छोड़ें प्लीज़। इससे बिलाल फरीद के लम्से गिन आ रही थी। बिलाल ने सर्द निगाहों से इसे देखा। आइंदा मेरा हाथ हटाने की जुर्रत मत करना, तुम्हारे वजूद के एक एक इंच पर मेरा हक है। मैं चाहूँ तो अभी ये हक ले लूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसने सीरत के करीब झुकते इंतहाई आमियाना बात की। वो लम्हा भर के लिए दंग रह गई, फिर न जाने कैसे इसका हाथ उठा और इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ बिलाल फरीद के चेहरे पर दे मारा। एक पल के लिए तो बिलाल फरीद को समझ ही नहीं आई, वो फिर जब इसे पता चला तो जैसे आपे से बाहर हो गया। इसने दोनों कंधों से पकड़ कर सीरत को बुरी तरह झंझोड़ डाला। औकात क्या है तुम्हारी या तुम्हारे भाई की? नहरा ही खत्म नहीं होता, करोड़ों रुपए का कर्ज दिया था मैंने तुम्हारे भाई को, सिर्फ इसलिए मुझे तुम पसंद आ गई थी, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं। जी तो चाहता है कि अभी। इसने हाथ बुलंद किया। सीरत के लबों से एक चीख निकली थी। दरवाज़ा खोलकर कई अफराद एक साथ अंदर दाखिल हुए। बेगम शुबाना, इनके शौहर और घर के मुलाजमीन जो यकीनन चीखो पुकार सुनकर यहाँ आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? नीचे सारे मेहमान जमा हैं। क्या हो गया है तुम दोनों को? इशफाक साहब ने बिलाल को हाथ उठाते हुए देख लिया। सीरत एकदम रोती हुई शबाना बेगम से लिपट गई। सारा भाभी कहाँ है? इन्हें बुला दें प्लीज़। वो सिसकती हुई रो रही थी और बिलाल खान का गुस्सा किसी तौर का नहीं हो रहा था। खामोश हो जाओ तुम लोग, अपने घर का मैटर अपने घर जाकर सुलझाना। फिलहाल नीचे मेरी बेटी का ससुराल आया हुआ है, इसका निकाह होने वाला है। इशफाक साहब ने बिलाल को समझाना चाहा, मगर वो एकदम बिफर गया। ये तो अच्छी बात है, निकाह होने वाला है तो सिर्फ इसका क्यों होगा, मेरा भी होगा। दुल्हन तो मेरी भी यहाँ मौजूद है। चलो। इसने सीरत का बाजू दबाया, इसे घसीटता बाहर ले जाने लगा। वो बूटे बूटे अंदाज में चलाई थी, यहाँ तमाशा बनाना बंद करें बिलाल प्लीज़, मेरा बाजू छोड़ें। वो रो रही थी। इससे शिद्दत से अफसोस हो रहा था कि वो यहाँ आई ही क्यों, मगर बिलाल के सर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। वो इसे यूं ही घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले आया, जहाँ लॉन्च में मौजूद शीजा के ससुराल वालों ने भी ये मंजर देखा। लॉन्ज में दुल्हन बनी शीजा सोफे पर बैठी थी। निकाह की सारी तैयारियां की जा चुकी थी, मगर बिलाल फरीद को यूं सीरत को घसीटता देखकर वो सब अपनी जगह साकत रह गए थे। क्या हो गया है बिलाल, छोड़ो इसका बाजू। मुस्तफ़ा भाई घबरा कर अपनी जगह से उठे, मगर बिलाल ने एक हाथ से इन्हें धकेल कर दूर कर दिया। सीरत तड़प कर रह गई। मेरे और मेरी होने वाली बीवी के मामले में कोई नहीं बोलेगा। वो अपनी ताकत के घमंड में चोर चोर नजर आ रहा था। सीरत को इसने पटखने वाले अंदाज में सोफे पर फेंका। चल मौलवी, निकाह पड़ा, जानता तो है ना मुझे अखबारात में पड़ा होगा मेरे बारे में। वो टांग पर टांग जमाए जमाता सोफे पर बैठ गया था। सब ही हैरान परेशान थे। सीरत मुश्किल अपनी सिसकियां रोक रही थी। हाँ महाजहां जेब पर एतबार किया होने देती, मेरे साथ जो कुछ भी होता आज ये तमाशा तो ना लगा होता। इसने बेबसी से पलके मीची। निकाह पढ़वाई मौलवी साहब, मगर सीरत और बिलाल फरीद का निकाह नहीं, बल्कि शीजा और इसके मंगेतर का। लॉन्च में मानूस आवाज़ गूंजी। सीरत ने हथेलियां चेहरे के आगे से हटाई। वो जहां जेब था पुरसकून अंदाज में चलता हुआ बिलाल के ऐन सामने आ खड़ा हो गया। सीरत उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इसने यूं ही बिलाल के सामने खड़े इत्मीनान से सीरत को मुखातब किया। बिलाल के चेहरे का रंग बदला। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? वो गिरा कर अपनी जगह से उठा था और जहां जेब ने इसी इत्मीनान से इसके कंधे पर हाथ रखा, इसको वापस सोफे पर बिठा दिया। जहां जेब की आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। आवाज़ धीमी रख कर बात करो, तुम ताकतवर हो तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा पूरा तख्त उल्टा सकता हूँ। मुस्तफ़ा भाई को धमकाना बंद करो। इनकी बहन को ज़बरदस्ती अपनी मंगेतर बना रखा था तुमने। तुम क्या समझते हो कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं? जहांज़ेब ने सीधा बिलाल की आंखों में झांक कर सवाल किया। वो तन फन करके रह गया। मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना, वरना तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बिलाल एक दफ़ा फिर गुरा कर बोला। जहांज़ेब सुकून से पीछे हटकर खड़ा हो गया। आप जितने अफराद भी यहाँ मौजूद हैं, इन सब के सामने मैं बता दूँ कि ये मौसफ एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी ताकत के घमंड में डूबकर उन्होंने मुस्तफ़ा भाई जैसे शरीफ आदमी और इनकी बहन को अरसा दराज से परेशान कर रखा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं सीरत से निकाह कर चुका हूँ और मेरी बीवी को कोई डराए या धमकाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो इतने इत्मीनान से बोला कि बिलाल का मुंह खुले का खुला रह गया और फिर एकदम बिफर कर अपनी जगह से उठा था। ये क्या बकवास है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो चलाया। जहां जेब ने निकाहनामा इसके सामने मेज़ पर पटा, पढ़ लो। ये निकाह सीरत की भाभी की मर्जी से हुआ है, इसलिए अगर दोबारा ऊंची आवाज़ में चिल्लाए तो मेरे आदमी तुम्हें ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ से तुम उठ भी नहीं सकते। वो इत्मीनान से सीरत के बराबर बैठ गया था। बिलाल ने निकाहनामा उठाकर पढ़ा। इसके चेहरे की रंगत ज़्यादा पड़ी थी। जिस सियासी पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है, इसका सरबराह मेरे बाप का दोस्त है। मेरे एक फ़ोन कॉल पर वो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा देगा।
तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस जब्त कर लिया जाएगा और वो चंद करोड़ रुपए जो तुमने मुस्तफ़ा भाई को दिए थे वो मैं तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। आज के बाद मेरी बीवी और इसके भाई के पास भी नजर आए तो तुम्हारा हाल मैं कुत्तों से भी बदतर कर दूंगा। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके अंदाज में इतना इत्मीनान था कि सब हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रहे थे। बिलाल फड़फड़ा कर रह गया। इसके माथे पर पसीने नमदार हुए थे। इसने बेइख्तियार जेब से फ़ोन निकाला और शेर बार निगाहों से जहां ज़ेब को देखते नंबर मिलाने लगा। शायद तस्दीक कर रहा था जो कुछ जहां ज़ेब ने कहा था वो दुरुस्त था या नहीं। और सिर्फ 5 मिनट बाद ही इसकी रंगत ऐसे जर्द पड़ी जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। वो पहचान गया था ताकत और दौलत भी जहां ज़ेब इससे कहीं गुना ज़्यादा बुलंद था। देख लूँगा मैं तुम्हें धोखाधड़ी का मुकदमा दायर करूँगा मुस्तफ़ा पर। वो एकदम चिल्लाया। मुस्तफ़ा भाई के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो यकदम अपनी जगह से उठे। मेरा इंतहा में अपनी बहन के लिए गलत था, मगर जो इंतहा मेरी बहन ने किया है मैं इसे सर आंखों पर बिठाता हूँ। मैं तुम्हारे वो करोड़ों रुपए कब के वापस कर चुका हूँ, मगर अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन के लायक ही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। वो चिल्लाकर बोले। इन सब के सामने बिलाल फरीद को अपनी शदीद बेइज्जती महसूस हुई थी। वो कुछ करना चाहता था लेकिन बेबस मछली की तरह तड़प कर रह गया। जहां ज़ेब की पहुंच इसे साफ दिखाई दे रही थी। खा जाने वाली निगाहों से सीरत को देखते हुए तन फन करता कमरे से बाहर निकल गया था। सीरत यूं ही साकत बैठी लरसती रही। बहुत हो गया तमाशा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सब हमारी वजह से हुआ। मुस्तफ़ा भाई शर्मिंदगी से उठ खड़े हुए थे। इशफाक साहब ने इनके कंधों पर हाथ रखा। ऐसी बात नहीं, सीरत हमारी बेटी है और जहाँ से तो वहाब का पुराना दोस्त है, इस लिहाज से ये हमारी बहू भी हुई। माहौल यकदम हल्का फुल्का सा हो गया। शीज़ा के ससुराल वाले खुले दिमाग के लोग थे। उन्होंने किसी बात का इशू नहीं बनाया। शीज़ा का निकाह पुरसुकून माहौल में अंजाम पाया। तुम ठीक हो? जहांज़ेब ने आहिस्तगी से सीरत का सर्द पड़ता हाथ थामा। वो चौंक कर इसकी तरफ पलटी। जी सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोबारा तो नहीं आएगा ना? वो बेइंतहा खौफ ज़दा लग रही थी। जहांज़ेब भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। नहीं आएगा क्योंकि जब तक वो वापस अपने घर पहुंचेगा इसका आधे से ज़्यादा बैंक बैलेंस जब्त कर लिया गया होगा। पार्टी के ओहदे से इसे हटा दिया गया होगा। ये सारे काम भी यहाँ आने से पहले कर आया था। इसका घमंड इसकी दौलत से है। जब ना दौलत रहेगी ना ही ओहदा तो वो किस बुनियाद पर मेरी बीवी से उलझेगा। सीरत के सर से ढेरों बोझ उतर गया। सामने बैठे शख्स ने जैसे इसे मौत के मुंह से निकाल लिया। वो बेहतियार मुस्कुराई। अच्छी लग रही हूँ, इसका मतलब है मेरी चॉइस अच्छी है। वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। सीरत हया से गुलाबी पड़ने लगी। इसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।